हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में यूजीसी नेट कॉमर्स जो कि 7 दिसंबर 2023 को एग्ज़ाम हुआ है उसके डिटेल सॉल्यूशन से गो थ्रू करेंगे। हमने इस डिटेल सॉल्यूशन में बेसिकली क्वेश्चंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी है जो कि मॉडरेट और सेकंड कैटेगरी है टफ। मॉडरेट क्वेश्चंस को जो कैटेगराइज किया है वो आप देखोगे कि उसमें ग्रीन टैग लगा हुआ है और ऐसे क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो कि हम अगर अच्छे से पढ़ाई करके जाएं एग्जाम में तो आराम से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे और उनका सही आंसर आइडेंटिफाई कर पाएंगे। टफ क्वेश्चंस जो कि रेड टैगिंग के साथ आपको दिखाई देंगे वीडियो में, उनका उस कैटेगरी में हमने उन क्वेश्चंस को रखा है जो कि आउट ऑफ द बॉक्स हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सभी के सभी एस्पिरेंट्स जो अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है, तो या तो वो फ्लूक बेसिस पे ठीक कर पाएंगे उसको, या फिर ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम लोग ठीक कर पाएंगे जिन्होंने उस स्पेसिफिक टॉपिक को गो थ्रू किया होगा। ठीक है, तो डिटेल सॉल्यूशन शुरू करने से पहले अगर आप कोड 17, कोड 55 या कोड 08 की तैयारी कर रहे हैं तो आप ह्यूमन पेरिटर्स के साथ एनरोल हो सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? इन विच रेशियो विल द रिमेनिंग पार्टनर्स कंपनसेट द रिटायरिंग पार्टनर फॉर अ शेयर ऑफ गुडविल? So because goodwill is earned in a partnership firm with the efforts of all the partners, so at the time of the retirement or at the death of the partner, the continuing partners or the remaining partners have to compensate the retiring partner or the deceased partner with his or her share of goodwill, and this is done in gaining ratio. So gaining ratio is nothing but it is your new profit sharing ratio minus old profit sharing ratio. Okay, so this is very easy question. Next, which one of the following accounting concepts and conventions consider it reasonable to use the historical cost to record long-lived assets? So basically if we go by the options of the questions, first is your entity concept. So entity concept के according business is a separate legal entity distinct from its owner. Going concern convention assumes that business will continue for indefinite period of time, and as per materiality convention all the significant information related to business must be disclosed in the financial statements, and according to periodicity convention the life of the business is to be divided into regular periods for reporting purpose, right? Okay, so now the question is saying which convention makes it reasonable to use the historical cost for recording long lived assets. So long lived assets कौन से होते हैं? Which provide us certain economic benefit over the future period of time. कौन सी ऐसी कन्वेंशन है इनमें से जो कि हिस्टोरिकल कॉस्ट को एम्फेसाइज करती है? दैट इज आवर गोइंग कंसर्न कन्वेंशन. ठीक है, बिकॉज गोइंग कंसर्न कन्वेंशन एज्यूम्स दैट द बिजनेस विल रन फॉर इंडेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम और फॉर foreseeable future. So long lived assets which are going to provide us economic benefit over future period of time. So this convention makes it reasonable to use a historical cost for recording long lived assets. So historical cost क्या होती है? This is the cost at which the assets are originally purchased. ठीक है, so original purchase price is known as the historical cost of the assets. So going concern convention के according historical cost को use करना is reasonable. Okay, next question is from corporate accounting. Again this is very moderate question. If you have studied the corporate accounting basic journal entries or journal entries related to forfeiture of shares, so this question is based on that concept, right? So पहले information देख लेते हैं कि क्या क्या given है question में और based on that we will identify the answer. ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली 1000 शेयर्स हैं विच हैव बीन इशूड बाय द
Lakshmi Industries, and what is the price of per share? That is rupees 100, and at the same time the company has issued these 1000 shares at a premium of rupees 10 each. So this is nothing but this is the premium on the shares, right? And this 100 is being called for by the company in like यहाँ पर लिखा है, this has been mentioned here, rupees 20 on application, ठीक है? तो कैसे कॉल किया है? rupees 20 on application and rupees 35 which also includes rupees 10 premium on allotment, and rest by way of full and फाइनल कॉल. तो हमारे को निकालना क्या है? मिस्टर एक्स हु हेल्ड 200 शेयर्स हैज पेड ओनली द एप्लीकेशन मनी. नाउ हियर मिस्टर एक्स हुज होल्डिंग इज 200 शेयर्स. कितने शेयर्स हैं उनके पास? 200 शेयर्स हैं, एंड ही हैज पेड हाउ मच मनी टिल नाउ? एप्लीकेशन मनी इन्होंने दे दी है, ठीक है. रेस्ट बिकॉज उन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं दी है, सब्सिक्वेंटली द कंपनी हैज फॉरफिटेड हिज शेयर्स. तो अब हमारे को क्या निकालना है? वी हैव टू आइडेंटिफाई बाय विच अमाउंट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट उस अमाउंट से क्रेडिट किया जाएगा वॉट एवर इज बीन पेड बाय द शेयर होल्डर हु शेयर हैज बीन फॉरफिटेड. तो कितना इन्होंने दे दिया है? लिखा हुआ है, साफ साफ सामने लिखा हुआ है कि ही हैज पेड ओनली द एप्लीकेशन मनी. तो एप्लीकेशन मनी दी है, तो सिंपल सा कैलकुलेशन होगा, 200 शेयर्स पर 20 पर शेयर के हिसाब से पेमेंट हो चुकी है. सो दिस कम्स आउट टू बी 4000. सो एज पर दिस 4000 शुड बी आवर आंसर. दिस इज द अमाउंट विच शुड बी क्रेडिटेड टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट. ओके, क्योंकि उन्होंने इतना पे कर दिया था, अब उनके शेयर्स तो चले गए, फॉरफिट हो गए हैं, तो ये वाला जो अमाउंट है दैट विल बी क्रेडिटेड टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट. ठीक है, सो आंसर इज ए. Okay, the question is which of the following frameworks is considered as the open international standard for digital business reporting? तो digital business reporting के लिए जो आजकल common language use होती है that is XBRL reporting. XBRL stands for Extensible Business Reporting Language. So एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज बना दी गई है जिससे कि इंटरनेशनल लेवल पर सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है बाय द फाइनेंशियल यूजर्स. तो ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप इस कंट्री में, इंडिया में बाहर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना चाहते हो बट दे आर एज पर डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो उनको समझने के लिए ग्लोबली इंडिया में जो बैठा हुआ यूजर है वो अमेरिकन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे समझेगा या वाइज वर्सा कैसे होगा, वो XBRL रिपोर्टिंग की वजह से पॉसिबल हो पाएगा. ठीक है, क्योंकि सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अब बोला गया है कि पब्लिक डोमेन में लाने के लिए XBRL में ही रिपोर्ट करना है कंपनीज को, विच इज बेसिकली अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म ऑफ रिपोर्टिंग. तो जिससे भी जितने भी इंटरनेशनल यूजर्स हैं या मल्टी यूजर्स हैं वो इजीली किसी भी देश की कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ठीक है, सो आंसर इज सी. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज हैज सजेस्टेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ NBFC रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. सो इसका आंसर पहले है शाह कमेटी 1992. तो इसको टफ की कैटेगरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि कोई भी यूजीसी नेट में कॉन्सेप्ट आता है तो उसकी हिस्ट्री हो सकती है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल NBFC की हिस्ट्री हो सकती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कोई हिस्ट्री है, RBI की हिस्ट्री है. तो वर्ड टू वर्ड या इनसे रिलेटेड जितने भी इनकी हिस्ट्री में कमिटीज बनी है तो उनको याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो रोट लर्निंग जहाँ पर आ जाती है तो कई बार उस कंसेप्ट को टफ कह सकते हैं. ठीक है, तो 1992 में एक स्पेसिफिक कमेटी बनी थी और AC शाह कमेटी था इसका नाम. बेसिकली provided for these very points, that is entry point norms, compulsory registration of large size NBFCs, prescription of prudential norms for NBFCs on the lines of banks, stipulation of credit rating, and it also gave more statutory powers to Reserve Bank for better regulation of NBFCs. ठीक है, next, the sequential stages of moral development in business organizations are characterized by, so sequential stages of moral development बतानी है तो इसका आंसर है that is pre-conventional, conventional and principle oriented.
So if we talk about pre-conventional, तो pre-conventional stage of moral development में individuals are focused on self-interest and personal outcomes. ठीक है. Conventional की बात करें, here the individuals they conform to the societal norms or rules and regulations of the societies. और principle oriented में basically they develop their own moral principles and values based on the universally accepted principles. जो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं उनके बेसिस पर यहाँ पर इंडिविजुअल्स अपने खुद मॉरल प्रिंसिपल्स और वैल्यूज को डिसाइड करते हैं. तो सिक्वेंशियल स्टेजेस कौन सी हैं? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड प्रिंसिपल ओरिएंटेड. ठीक है. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्पोज टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन. तो फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर हमारे को मीनिंग पता है वी विल इजीली गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब भी यही होता है यूनिवर्सल एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज. ठीक है. वेयर द फाइनेंशियल सर्विसेज आर made available and accessible to all the individuals and business regardless of their income or strata in the society, that is being referred to as financial inclusion. ठीक है. तो आंसर इसका सी है. Which one of the following is invalid for the relationship among the agent, the sub-agent and the principal? तो यहाँ पर एक प्रिंसिपल है हमारा. ठीक है. देन प्रिंसिपल अपॉइंट्स एजेंट फॉर हिज वर्क और यहाँ पर एजेंट ने सब एजेंट अपॉइंट किया है. तो 3 लेवल की रिलेशनशिप बन गई है. ठीक है. तो इस लेवल की रिलेशनशिप है और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है. तो अगर हम सब एजेंसी से रिलेटेड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे तो हमारे को इसका स्पेसिफिक आंसर मिल जाएगा. बहुत इजी क्वेश्चन है ये. सब एजेंट वर्क्स अंडर द कंट्रोल एंड ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द एजेंट. सो ये ट्रू है. ठीक है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द एजेंट ओनली. यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. Privity of contract exists between the principal and the sub-agent. So this is invalid as far as the relationship of principal and sub-agent is talked about. ठीक है. तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट 2 पार्टीज के बीच में हो रहा है तो थर्ड पार्टी को हम ना स्यू कर सकते हैं. उसकी कोई राइट नहीं है, उसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है. तो जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट हैं उन्हीं की राइट्स हैं और उन्हीं की कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटीज हैं. तो उसको बोलते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द सब एजेंट. ठीक है. और ये भी स्टेटमेंट ट्रू है. एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट. ठीक है. तो इसका आंसर सी रहेगा. ओके. So here the principal cannot hold directly responsible to sub agent. ठीक है. और एजेंट सब एजेंट के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टू द प्रिंसिपल. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं. इन केस ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज बाय अ फर्म द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया कैन इम्पोज अ पेनल्टी विच शैल नॉट बी मोर देन. तो सेक्शन 27B देखें तो स्पेसिफिकली ये पेनल्टी मेंशन्ड है 10% ऑफ द एवरेज टर्नओवर और इनकम ऑफ द फर्म ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स. ठीक है. तो बहुत ईजी क्वेश्चन है कॉम्पिटिशन कमीशन के ऊपर. ठीक है. कॉम्पिटिशन एक्ट से आया ये. Which one of the following is an exception to the doctrine of constructive notice? तो doctrine of constructive notice की exception बतानी है. तो पहले तो constructive notice क्या होता है? constructive notice के according basically जो भी थर्ड पार्टी किसी भी कंपनी से डील कर रही है it is presumed to have knowledge of all the documents which are in public domain. For example, its article of association, its memorandum of association. तो हम presume करके चलते हैं. तो इसकी exception बतानी है which is Turcotte rule. तो Turcotte rule के according individuals dealing with the company they basically can assume that internal company procedures are properly followed and properly regulated. ठीक है. तो इसको बेसिकली रूल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है. तो इंडोर मैनेजमेंट ये कहती है कि कोई भी जो आउटसाइडर है ही नीड नॉट बॉदर अबाउट द इंटरनल
इरेगुलरिटी इन द प्रोसीजर्स ऑफ द कंपनी। अब अगर मैं आउटसाइडर तो मुझे कैसे पता चलेगा कि जिस एक्ट के लिए बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन पास होनी चाहिए थी वो पास की गई है या नहीं की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलती है आउटसाइडर्स को, इंडोर मैनेजमेंट में आउटसाइडर्स को प्रोटेक्शन दी जाती है। ठीक है जी, ओके। और जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है इसमें कंपनी को प्रोटेक्शन मिलती है, कंपनी इज बीइंग प्रोटेक्टेड। ठीक है, इन डीलिंग विद द थर्ड पार्टीज। तो इसका आंसर डी है। एज पर सबसेक्शन 8A ऑफ द सेक्शन 139 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया, पर्सन में फर्निश एन अपडेटेड रिटर्न ऑफ हिज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू द सच असेसमेंट ईयर विद इन हाउ मेनी टाइम पीरियड फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर 24 मंथ्स है। अगर इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा है, सेक्शन 139 अच्छे से पढ़ना चाहिए, और क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया उनसे, और इसका आंसर है 24 मंथ्स। ठीक है, आगे चलते हैं। मिस्टर एक्स इज होल्डिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड विद वोटिंग पावर ऑफ 26%. Mr. X is working in ABC Limited at a so Mrs. X is working in ABC Limited at a salary of 20,000 per month. So basically मैं बता दूँ ये इनकम टैक्स के क्लबिंग प्रोविजन से क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर क्लबिंग प्रोविजन छोटा सा चैप्टर है, अच्छे से जो 6-7 उसमें केसेस हैं वो पढ़े हुए हैं, तो हम बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। दी अदर इनकम ऑफ मिस्टर एक्स एंड मिसेज एक्स, तो मिस्टर एक्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसको समझ लेते हैं कैसे कैलकुलेट किया होगा। मिस्टर एक्स हैं और उनकी वाइफ हैं मिसेज एक्स। ठीक है, इनकी पहले तो अदर इनकम देख लेते हैं। मिस्टर एक्स की दी हुई है 6 लाख और मिसेज एक्स की अदर इनकम मतलब इस एंटिटी से बात नहीं हो रही जिनकी एबीसी लिमिटेड में शेयर्स हैं। तो मिस्टर एक्स के एबीसी लिमिटेड में इक्विटी शेयर्स हैं और वोटिंग पावर कितनी है 26%। तो अगर 20% से ऊपर की होल्डिंग होती है तो उसी कंपनी में अगर वाइफ या कोई स्पाउस एट अ सैलरी काम कर रहा है, एट अ रेम्युनरेशन अगर काम कर रहा है, और दैट टू विदाउट एनी प्रोफेशनल नॉलेज और एक्सपीरियंस, तो क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है कि मिसेज एक्स जो है वो एबीसी लिमिटेड में प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे काम कर रही है, तो अगर लिखा होता तो फिर क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं थे। ठीक है, तो अगर नहीं लिखा तो इसका मतलब मिसेज एक्स की जो मिसेज एक्स की जो इनकम है वो मिस्टर एक्स में क्लब होएगी। ठीक है, सैलरी इनकम, अदर इनकम अलग से अकाउंट फॉर होगी। तो मिस्टर एक्स 6 लाख है, 6 लाख पर है इनकी अदर इनकम। ठीक है, और इसमें अगर हम क्लब करेंगे इनकी वाइफ की इनकम को अगर हम क्लब करेंगे तो इनकी बनती है दैट इज 20,000 अगर पर मंथ है तो इंटू 12 करेंगे तो एनुअल कितनी होगी 2,40,000। ठीक है, 2,40,000 होगी, और उसके बाद इनको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगी एट द रेट ऑफ 50,000। तो ये माइनस हो जाएगी, सैलरी इनकम पे 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है ना, तो 1,90,000 जो है वो यहाँ पर इनकी इनकम में क्लब हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे हो गई इनकी टोटल इनकम 7,90,000 मानी जाएगी, और इनकी अदर इनकम तो ये स्पेसिफाइड है ही है 3 लाख। तो आंसर यहाँ पर होना चाहिए बी। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। एवरी सेलर हु रिसीव्स एन अमाउंट एक्सीडिंग, कितना अमाउंट रिसीव करने पर अगर सेलर मोटर व्हीकल सेल करता है तो उसको टैक्स कलेक्ट करना है, टीसीएस बनता है एट द रेट ऑफ 1% फ्रॉम द बायर, और कितनी कंसिडरेशन पर ₹10 लाख पे। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउएबल डिडक्शन, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन पूछी हुई है, तो सिंपल सा इसका आंसर है लोअर ऑफ 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी, और भी तो 3 चीज़ों का लीस्ट होता है, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक है, या ₹5,000, या फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस जो एक्चुअल में रिसीव किया गया है। तो इन तीनों में से जो भी लीस्ट रहेगा वो एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, तो सिंपल सा बी आंसर है इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज आर क्रिटिकली सिग्निफिकेंट फॉर एन इन्वेस्टर, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डेट इक्विटी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, डिविडेंड यील्ड रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो और डेटर टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेस्टर को एसेट टर्नओवर रेशियो और डेटर टर्नओवर रेशियो से इतना मतलब नहीं होता। ठीक है, तो ये जो रेशियोज होते हैं डेट इक्विटी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो और डिविडेंड, तो डिविडेंड कितना पे आउट है किसी कंपनी का, या फिर
प्राइस अर्निंग रेशो से ये पता चलता है कि जो कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है शेयर का, वो कितना है एज कम्पेयर टू इट्स ईपीएस, वो प्राइस अर्निंग रेशो से पता चलता है। या डेट इक्विटी रेशो में बेसिकली क्या आउटकम रहता है, टोटल लाइबिलिटी वर्सेस शेयर होल्डर्स इक्विटी, उसके बारे में पता चलता है कि हमारा जो व्हाट इज द लेवल ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद द डेट लेवल्स ऑफ द कंपनी, दैट इज बीन आइडेंटिफाइड विद द यूज ऑफ डेट इक्विटी रेशो। तो ये जो तीनों रेशोज हैं, दे आर वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो इसका आंसर ए है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट आर द स्टेट्स विच where every supplier of the goods and services is required to obtain registration if his aggregate turnover exceeds the threshold limit of rupees 20 lakh for supply of goods and services। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन पहले तो ड्रॉप कर दिया गया। ठीक है, क्यों ड्रॉप कर दिया गया, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर एज पर जीएसटी प्रोविजंस जो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा है, उस पर कौन सी थ्रेशोल्ड लिमिट्स एप्लीकेबल होती है, ₹10 लाख की फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, और अगर यही स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी और तेलंगाना है, तो यहाँ पर थ्रेशोल्ड की लिमिट 20 लाख है। तो बेसिकली 20 लाख में तो ये भी तो कवर होगी ना। तो अगर आप देखो तो ये सारी की सारी को रजिस्ट्रेशन करवानी कंपल्सरी है एज पर दीज प्रोविजंस। ठीक है, क्योंकि 10 लाख वाले में मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा कवर्ड है। ठीक है, ये दोनों कवर्ड है, और 20 लाख वाले में ये दोनों कवर्ड है। तो 10 लाख जो है वो 20 लाख से कम होता है, तो रजिस्ट्रेशन तो इसका मतलब सबको ही करवानी है। तो ये पुअरली फ्रेम्ड क्वेश्चन था, इसीलिए दिस क्वेश्चन हैज बीन ड्रॉप्ड। ठीक है, तो हैड इट बीन द ऑप्शंस अदरवाइज, कोई और ऑप्शंस होती मणिपुर और मिजोरम की जगह, तो फिर हम इस क्वेश्चन को सही कंसिडर कर सकते थे, फिर हमारा आंसर हो जाता ए, बी और ई। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो जाता, मेघालय हो जाता और सिक्किम फिर हो जाता, अगर ये दोनों ऑप्शंस नहीं होती तो, जो कि 10 लाख वाले थ्रेशोल्ड में कवर्ड है। ठीक है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बिकम द मेंबर ऑफ एन एलएलपी, अगेन इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम द एलएलपी एक्ट 2008। तो वहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंबर की डेफिनेशन दी हुई है। एज पर दिस एक्ट कोई भी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट कैन बिकम द मेंबर ऑफ द एलएलपी। ठीक है, और अगर हम बॉडी कॉर्पोरेट, तो इंडिविजुअल हो गए रेजिडेंट इंडियंस, यस ट्रू, बन सकते हैं मेंबर। अब बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में एलएलपी आती है। ठीक है, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया भी आती है, और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया भी आती है। ठीक है, तो ये भी कवर्ड हो गई, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। पर स्पेसिफिकली बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशंस की जब एक्सेप्शंस देखते हैं, तो उसमें देखने को मिलता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर नहीं बन सकती, कॉर्पोरेशन सोल मेंबर नहीं बन सकती है। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर ए, बी और ई हो गया। ठीक है, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डीम्ड टू बी डिविडेंड। तो डीम्ड डिविडेंड की डेफिनेशन इनकम टैक्स में कहाँ दी हुई है, सेक्शन 2 क्लॉज 22 में दे रखी है, इनकम टैक्स एक्ट के डीम्ड डिविडेंड की डेफिनेशन। और इसमें जब आप स्पेसिफिक पॉइंट्स कवर करोगे, वहीं से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन उठ के आया हुआ है। तो जिसने सेक्शन 2 सब क्लॉज 22 पढ़ा होगा, तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो अगर पेमेंट ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स डीम्ड डिविडेंड की डेफिनेशन में नहीं आता। पेमेंट टू शेयर होल्डर्स ऑन रिडक्शन ऑफ कैपिटल, ये देखिए यहाँ पे कवर्ड है, तो इसका मतलब ये है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिबेंचर्स टू शेयर होल्डर्स, तो ये भी हमारा कवर्ड है, ये रहा। ठीक है, टू शेयर होल्डर्स। एंड देन लोन्स ग्रांटेड टू शेयर होल्डर्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये कवर्ड नहीं है, ये कवर्ड है। लोन ग्रांटेड टू शेयर होल्डर्स बाय अ क्लोजली हेल्ड कंपनी। तो हम ये मान के चल लेंगे कि इन केसेस में कंपनी जो है वो डिविडेंड दे रही है। हालांकि ऑन द फेस ऑफ इट द डिविडेंड इज नॉट डायरेक्टली पेड, बट अगर कंपनी ऐसा कुछ भी काम करती है कि शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर रही है ऑन रिडक्शन ऑफ कैपिटल, या फिर लोन ग्रांट किया गया है शेयर होल्डर को बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी, ठीक है, तो या फिर शेयर होल्डर्स को डिवेंचर दे दिए गए हैं, तो हम मान के चल लेंगे कि वो कंपनी डिविडेंड दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी क्लब्ड इनटू द इनकम ऑफ मिस्टर क्यू हुज इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। तो अब इनकम फ्रॉम प्रोफेशन दे रखी है, यहाँ पर वो रिलेशनशिप नहीं है कि रेम्युनरेशन क्लब होती है जब एक स्पाउस इक्विटी होल्ड करता है किसी एंटिटी में और उसी एंटिटी में दूसरा स्पाउस
एट रेम्यूनरेशन काम कर रहा है, तो वो केस तो एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे मिस्टर क्यू प्रोफेशनल इनकम है 85,000, मिसेस क्यू की भी प्रोफेशनल इनकम दे रखी है, तो क्लबिंग प्रोविजन इस पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। मिसेस क्यू की सैलरी एज अ क्लर्क भी दे रखी है, तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते। माइनर्स की जो इनकम होती है दैट इज बीन क्लब्ड विद द पेरेंट्स इनकम हुज अदर इनकम इज हायर, ठीक है। तो अब इस केस में, इन तीनों केस में हमारे को ये देखना है कि क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं या नहीं होते। तो इंडिविजुअल केसेस हम चेक कर लेते हैं। माइनर सन अर्न इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, तो पहले तो ये जान लेते हैं कि माइनर की इनकम कब क्लब होती है पेरेंट की इनकम में, ये वाले केसेस ना हो, यानी कि मैं आपको एक्सेप्शंस बता रही हूँ। क्लबिंग प्रोविजंस कब एप्लीकेबल नहीं होते हैं माइनर की इनकम के ऊपर, कि अगर माइनर ने इनकम अर्न करी है बिकॉज ऑफ हिज ओन मैनुअल वर्क, ठीक है। तो 3 केसेस मेंशन्ड है। अगर उसने खुद कोई मैनुअल वर्क किया और कुछ इनकम अर्न करी है तो क्लबिंग नहीं होगी, ठीक है। या फिर द इनकम हैज बीन अर्न्ड बाय माइनर बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हिज स्किल, टैलेंट और स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ठीक है। और तीसरा केस है इफ ही इज सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 80U। तो इन तीनों केसेस में उसके ऊपर उसकी जो इनकम है दैट विल नॉट बी क्लब विद द पेरेंट इनकम। तो अब केसेस पढ़ लेते हैं। सी में लिखा है माइनर सन्स अर्न इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑफ मनी गिफ्टेड टू हिम बाय हिज अंकल, तो उसने कोई ऐसा काम नहीं किया इन तीनों में से, तो यानी कि यहाँ पर क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। माइनर डॉटर्स अर्निंग फ्रॉम स्पोर्ट्स इज ₹85,000, तो क्योंकि उसने स्पोर्ट्स के थ्रू वो इनकम अर्न करी है, तो यानी कि वो इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ठीक है ना। तो कौन सी कैटेगरी में फॉल हो रहा है, ये वाला, ये एप्लीकेशन ऑफ ए स्किल, टैलेंट और स्पेशलाइज्ड नॉलेज। और माइनर सन विनिंग फ्रॉम लॉटरी ₹1,05,000 वट एवर इज द अमाउंट, तो अगेन कोई एप्लीकेशन ऑफ स्किल, टैलेंट वगैरह नहीं है या मैनुअल वर्क नहीं किया गया, तो क्लबिंग प्रोविजन यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो इस केस में नहीं होंगे ऊपर वाले में, माइनस डॉटर्स अर्निंग फ्रॉम स्पोर्ट्स, ठीक है, ओके। तो C, E and E इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है जी। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट सेंटर्स को कॉस्ट इनकर्ड एंड अकाउंटेड फॉर से हमारे को मैच करना है। तो यूनिट लेवल एक्टिविटी सेंटर जो है दैट इज बीन एसोसिएटेड विद डायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। बैच लेवल एक्टिविटी सेंटर दैट इज बीन रिलेटेड टू योर material handling cost because it involves handling material in batches, ठीक है, ओके। प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी सेंटर में क्योंकि प्रोडक्ट की कॉस्ट में पेटेंट, ट्रेडमार्क्स और कॉपीराइट फीस इन्वॉल्व हो जाती है, दैट इज व्हाई प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी सेंटर इज एसोसिएटेड योर पेटेंट, ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट फीस। फैसिलिटी लेवल एक्टिविटी सेंटर देखें तो प्लांट, तो फैसिलिटी की पूरी डेप्रिसिएशन, उसके मेंटेनेंस के खर्चे होते हैं, तो इसीलिए फैसिलिटी लेवल एक्टिविटी सेंटर इज एसोसिएटेड विद प्लांट डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। तो अकॉर्डिंगली अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर ए बनेगा। नेक्स्ट, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मैनेजमेंट थिंकर्स हैं और इनकी अप्रोचेस दी हुई है। तो कर्ट लोएड ने क्या दिए हैं, चेंज मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए हैं, अनफ्रीजिंग, मूविंग एंड रीफ्रीजिंग। अगर हेनरी फ्योल को देखें तो हमें ये पता है कि उसने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए हैं, 14 प्रिंसिपल्स, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, स्केलर चेन। तो सी गोज विद 2 और C2 अगर आप देखोगे तो इसी ऑप्शन में ही अवेलेबल है, ठीक है। तो इसलिए बाकी भी आप मैच कर सकते हो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, दिस गोज विद विंडिक्टिव डैमेज। तो विंडिक्टिव डैमेज तब अप्लाई होती है जब द अदर पार्टी सफर्स मेंटली। तो बिकॉज देयर इज अ ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, तो जो दूसरी पार्टी है उसको मेंटल एगनी झेलनी पड़ती है, इसीलिए विंडिक्टिव डैमेजेस डिक्लेयर की जाती हैं, ठीक है। पार्ट परफॉर्मेंस एज मच एज अर्नड इज कनेक्टेड विद स्यू फॉर क्वांटम मेरिट। तो क्वांटम मेरिट का मतलब ये होता है कि जितना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम हो चुका होता है, on the rescission of the contract, on the cancellation of the contract, the party which has obtained the benefit under that contract, it has to
pay for that amount to the other party. Absolvation from all obligations is related to rescission of contract, या इसको हम cancellation of contract भी कहते हैं. So mode of securing the specific performance of negative terms of contract is related to suit for injunction. इसका आपको मैं example देके अगर समझाऊं, फॉर एग्जाम्पल मान लो फराह खान जो है एक मूवी प्रोड्यूस कर रही है एंड वो कैटरीना कैफ के साथ पिक्चर साइन करती है एंड नाउ शी सेज कि टिल द टाइम यू आर एसोसिएटेड विद माय फिल्म यू कैन नॉट डू एनी अदर फिल्म. ठीक है, तो वो जो नेगेटिव टर्म्स को एनफोर्स करने के लिए कोर्ट ऑर्डर्स देती है, दैट इज सूट फॉर इंजंक्शन. ओके, अगेन इनकम टैक्स एक्ट से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन उठ के आया है. एग्जाम्पशंस ऑफ कैपिटल गेन्स के बारे में सेक्शंस पूछे गए हैं, तो सेक्शंस हमारे को करने हैं. लीगल एस्पेक्ट्स में जहाँ जहाँ सेक्शन स्पेसिफिक हैं वो कर लेने चाहिए. बहुत बार सेक्शंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आए हैं. एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो आपकी रिलेटेड है, सेक्शन 54B में बात की गई है. तो ये कुछ नहीं है, ये एसेट्स के बारे में बात हो रही है. ठीक है, कौन सा एसेट्स ट्रांसफ़र करने पर एग्जम्पशन मिलती है हमारे को कैपिटल गेन्स में अंडर सेक्शन 54 एंड रिलेटेड सेक्शंस. ठीक है, तो A goes with your 1 and B goes with your 4, that is residential house की बात हुई है सेक्शन 54 में, and C goes with your 2, that is 54EC is related to land or building or both, और 54D जो है land and building forming part of an industrial undertaking की बात करता है. Okay, next question is arrange the steps in the book building process for public issue of shares in India. तो अगर हम पब्लिक इशू की बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड एक बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता है. बुक बिल्डिंग प्रोसेस इज अ प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म इन IPOs. ठीक है, तो इसके सर्टेन स्टेप्स होते हैं. तो अगर आपने ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं गैदर करी तो अब आप इसका आंसर थोड़ा सा मुश्किल लगेगा. अगर बुक बिल्डिंग प्रोसेस पढ़ लिया है तो वेल एंड गुड. तो इसीलिए टफ की कैटेगरी में रखा गया है कि अगर हम कंपनीज एक्ट में देखें ना तो बहुत ही इन डेप्थ चीज़ है ये. तो सरफेस लेवल पे तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस कोई नहीं पढ़ के जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए ये टफ की कैटेगरी में है. बुक बिल्डिंग प्रोसेस के अब स्टेप्स देख लेते हैं. तो इसका आंसर है CDBAE. C मीन्स सबसे पहले जो है अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरमीडियरीज की जाती है. ठीक है, तो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप. और उसके बाद जो फाइलिंग ऑफ रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, जितने भी ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट ऑफर डॉक्यूमेंट है वो फाइल किए जाते हैं सेबी के साथ. देन उसके बाद मार्केटिंग और रोड शोज होते हैं. ठीक है, ये बात की गई है यहाँ पर. बुक रनर एंड सिंडिकेट मेंबर्स जनरेट अवेयरनेस, क्रिएट डिमांड एंड रन द ऑर्डर बुक. ठीक है, तो उसको पॉपुलराइज भी तो करना होता है ना. ओके, एंड देन उसके बाद बिडिंग पीरियड डिसाइड होता है. फिर ड्यूरिंग विच इन्वेस्टर सबमिट्स बिड. ठीक है, और जब वो बिड्स बताते हैं तो बेसिकली they tell that what quantity of shares they want to purchase and the price they are willing to pay in the IPO. ठीक है, फिर उसके बाद प्राइस डिस्कवरी होती है. ओके, एंड दिस इज योर फोर्थ स्टेप. अकॉर्डिंगली डिटरमिन इशू प्राइस, मार्केट क्लियरिंग प्राइस एंड प्राइस डिस्कवरी. एंड देन फाइनली एलोकेशन ऑफ सिक्योरिटीज होती है जिसमें अलॉटमेंट बोला गया है, एंड लिस्टिंग ऑफ शेयर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है जी. Arrange the following steps in the investigation process of combinations by the Competition Commission of India in the correct order. तो अगेन कॉम्पिटिशन एक्ट से उठ के क्वेश्चन आया, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस पूछा गया कॉम्बिनेशंस के केस में. तो सबसे पहले अगर हम देखें तो किसी भी इन्वेस्टिगेशन में शो कॉज नोटिस इशू किया जाता है, तो जो कि यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है ना, और अगर आप देखोगे तो ई जो है वो इसी में आ रहा है. दिस इज हाउ वी कैन गो विद दी. अगर हमने नई भी सेक्शन पढ़ा तो ऐसे भी हम एलिमिनेशन मेथड्स वो कर सकते हैं. ठीक है, देन उसके बाद डीजी की रिपोर्ट अगर लेना चाहे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया तो वो ले सकता है. उसके बाद पब्लिश करवाई जाती है डिटेल्स ऑफ द कॉम्बिनेशन. ठीक है, ताकि किसी को भी अगर ये रहा डायरेक्ट द पार्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन टू पब्लिश डिटेल्स ऑफ द कॉम्बिनेशन, ये नेक्स्ट स्टेप रहेगा. ये सेकंड था, ये थर्ड है. और पब्लिश इसलिए करवाई जाती है कि अगर पब्लिक एट लार्ज को किसी को भी प्रॉब्लम है उस कॉम्बिनेशन से तो अपनी ऑब्जेक्शंस रेज कीजिए. ठीक है, तो ये रहा वो स्टेप. इनवाइट एनी पर्सन्स अफेक्टेड पार्टीज टू फाइल रिटर्न ऑब्जेक्शंस. और उसके बाद फिर CCI कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन पार्टीज से मांग सकता है. ठीक है, ओके.
नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एप्लीकेबल टीडीएस। तो एप्लीकेबल टीडीएस मतलब रेट्स अगर हमारे को पता होंगे तो वी कैन इजीली डू इट। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमारे को अप्लाई करना है। तो जो यहाँ से ये वाला जो पेमेंट ऑफ ₹35,000 टू एन इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर फॉर रिपेयर बाय अ यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर जो टीडीएस एप्लीकेबल है वो 1% एप्लीकेबल है। एंड यहाँ पर पेमेंट ऑफ ₹38,000 एज फीस फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज बाय कॉल सेंटर, यहाँ पर 2% रेट एप्लीकेबल है। देन रेंट के केस में यहाँ पर 5% एप्लीकेबल है और यहाँ पर आपका 10% एप्लीकेबल है डिविडेंड के केस में, और यहाँ पर 30% एप्लीकेबल है। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि जब भी कोई विनफॉल गेन होता है ना इनकम टैक्स में, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस या हम ये गेम शोज में भी कुछ जीते हैं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सरकार 30% का ही टैक्स लगा देती है। ठीक है, जो भी अमाउंट मिलता है 30% डिडक्ट करके ही मिलता है हमारे को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। Promoter invariably is the one who has been associated with formation of the company, और reason दिया हुआ है promoter is the one who undertakes to form a company with reference to a given object and who takes the necessary steps to accomplish that purpose। तो नेट ने ये डी आंसर इसका दिया है। ए इसका स्टेटमेंट एजर्शन ए जो है वो करेक्ट इसलिए नहीं है बिकॉज यहाँ पे इनवेरिएबली वर्ड लगा दिए हैं। तो बेसिकली प्रमोटर यहाँ पे लिख दिया है कि इनवेरिएबली मीन्स हमेशा ही he is the one who has been associated with the formation of the company. Yes, he is associated with the formation of the company, no doubt, but at times he may be into a less active role. He is getting this formation of company work done with the help of other professionals. ठीक है, तो promoter invariably is the one who has been associated with formation of the company। ऐसा भी केस हो सकता है कि that मान लीजिए मैं अपनी मम्मी के नाम की मम्मी को प्रमोटर बनाकर मैं कंपनी खोल रही हूँ। ठीक है, तो शी माइट नॉट बी एसोसिएटेड विद बट एज अ डॉटर आई एम एसोसिएटेड विद दैट कंपनी। ऑफ कोर्स उनको सारा नॉलेज में रख के शी सेज ओके यू फॉर्म अ कंपनी एंड ऑल दैट। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है यूजीसी नेट ने इसको गलत दे दिया होगा। ठीक है ना, तो ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। Now the question is, a charitable trust registered under section 12AB of the Income Tax Act is registered under GST in New Delhi। तो एक न्यू दिल्ली में एक चैरिटेबल ट्रस्ट की बात की गई है विच इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। और क्या क्या काम करती है? योगा ट्रेनिंग देती है मिडिल एजेड पीपल को, कोचिंग फॉर बास्केटबॉल टू टीनेजर्स एंड स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज टू पर्सन्स ओवर द एज ऑफ 65 ईयर्स रिजाइडिंग इन न्यू दिल्ली इन द मंथ ऑफ जुलाई। सो इस ट्रस्ट को किस एक्टिविटी पर, किस अपनी एक्टिविटी पर जीएसटी देना है वो बताना है। तो अगर हम सेक्शन 12A में पहले बात की गई है, सेक्शन 12A जो है रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता था, उसका प्लेस किसने ले लिया है? सेक्शन 12AB ने। फ्रेश रजिस्ट्रेशन की सारी कहानी डाल दी गई है इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 12AB में। तो जहाँ पे भी आपको 12A दिखेगा तो वो मान लीजिएगा 12AB हो चुका है अब। ठीक है, तो एग्जाम्पशन इनकी जो चैरिटेबल ट्रस्ट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, इनकी कुछ एक्टिविटीज़ एग्जाम्प्टेड होती है, नॉट ऑल द एक्टिविटीज़ आर एग्जाम्प्ट। तो स्पेसिफिकली जो भी प्रिस्क्राइब है इनकम टैक्स में वो एग्जाम्प्ट है। तो वो सारी आप देख सकते हो यहाँ पर आपके राइट हैंड साइड में मेंशन्ड है। स्पेसिफिक चैरिटेबल एक्टिविटीज़ विच आर एग्जाम्प्ट इंक्लूड पब्लिक हेल्थ हो गया, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजियन, स्पिरिचुअलिटी और योगा। तो योगा यहाँ कवर्ड हो गया, इसका मतलब योगा ट्रेनिंग जो है वो एग्जाम्प्टेड है। ठीक है, तो हमारे को बताना है एक्टिविटी विच ऑन विच दिस ट्रस्ट इज लाइबल टू पे जीएसटी। तो योगा ट्रेनिंग वाला कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे भी ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी अगर आप देखोगे कोचिंग फॉर बास्केटबॉल, तो स्पोर्ट्स कहाँ कवर्ड है? यहाँ पर ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट्स और कल्चर और स्पोर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ कवर हो गया। उसके बाद ये भी ऑप्शन इनवैलिड हो गई। स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज हम देखें तो वैसे तो स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज भी एग्जाम्पशन में आता है, लेकिन ये तब है जब ये एग्जाम्पशन तब मिलती है जब स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज पर्सन्स ओवर 65 ईयर्स को दिया जाए एंड दैट टू रिजाइडिंग इन रूरल एरियाज। तो यहाँ पर लिखा है रूरल एरियाज, क्योंकि ये न्यू दिल्ली की बात हो रही है तो रूरल एरिया नहीं है, इसलिए ये जो सर्विस है चैरिटेबल ट्रस्ट की वो एग्जाम्प्ट नहीं मानी जाएगी एंड इट इज लायबल टू पे टैक्स ऑन दिस सर्विसेज। अब आरसी बेस्ड क्वेश्चन है, तो जो इस एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं आरसी बेस्ड वो बहुत ही मॉडरेट रहे हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं था, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पैसेजेस में आंसर्स थे।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन एज पर द गिवन पैसेज फॉर क्राइसिस इन इकोनॉमिक मॉडलिंग। तो बेसिकली ये माइक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड पैसेज था, तो आपको ये आंसर यहाँ दिखेगा। द क्राइसिस इन इकोनॉमिक मॉडलिंग अराइजेस फ्रॉम द एग्रीगेटिंग बिलियंस ऑफ माइक्रो ट्रूथ्स इनटू वन मैक्रो ट्रूथ। तो अकॉर्डिंगली ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिस्ट मैच करनी है। इकोनॉमिक्स डिफाइंस लर्निंग ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, पिटफॉल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैंने तो इस क्वेश्चन को ऐसे करा था कि मुझे ये पता था मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स कौन से होते हैं। जीडीपी, देखो कहीं भी कॉमा नहीं है बाकी ऑप्शंस में, तो वेरिएबल्स का अलग अलग बताए हैं, जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, तो वैसे भी लिखा भी हुआ है। और पिटफॉल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात यहाँ पे की गई है और यहाँ पर लिखा भी है ह्यूमन बींग्स आर रैशनल एंड इन्फॉर्मेशन इज। इकोनॉमिक डिफाइन करती है, ये ऊपर दिया हुआ है, हाउ मार्केट्स डिस्कवर द मोस्ट एफिशिएंट प्राइजेस, ये रहा इकोनॉमिक्स डिफाइन करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एज पर द पैसेज आर द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो पहली लाइन में इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, फॉर मोस्ट ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस एज अ मॉडर्न फील्ड ऑफ स्टडी सिंस द 18th century, इकोनॉमिक्स हैज फेयर्ड रीजनेबली वेल एट एक्सप्लेनिंग कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स बिहेवियर। ठीक है, तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बिहेवियर की बात हो रही है। इट एक्सप्लेन वाई बायर्स चूज द प्रोडक्ट दे डू। ठीक है, तो बायर्स बिहेवियर की बात हो गई। फर्म्स के बिहेवियर के बाद नेक्स्ट कॉमा में बात हो गई, हाउ फर्म्स प्रोड्यूस देम टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड हाउ मार्केट्स डिस्कवर द मोस्ट एफिशिएंट प्राइजेस। तो मार्केट के बिहेवियर की भी बात हो रही है, तो ए बी डी होने चाहिए इसका आंसर। ठीक है जी, विच इज कैपिटल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्रो इकोनॉमिक्स कैन ओनली बैक टेस्ट देयर मॉडल्स अगेंस्ट डाटा दैट मे बी ऑफ क्वेश्चनेबल प्रोवेनियंस। Macroeconomic state variables elude the scientific method of testing hypothesis with repeated experiments। अगर आप पूरा पैसेज अच्छे से पढ़ोगे तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। एज पर दिस मैक्रोइकोनॉमिक्स कैन ओनली बैक टेस्ट देयर मॉडल्स अगेंस्ट डाटा दैट मे बी क्वेश्चनेबल प्रोवेनियंस। सेम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दी हुई है, स्टेटमेंट दी हुई है। मैक्रोइकोनॉमिक वेरिएबल्स एल्यूड द साइंटिफिक मेथड, तो इससे ऊपर अगर आप देखो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन एज पर द पैसेज फॉर ड्राइविंग मोर इफेक्टिव मैक्रो पॉलिसीज। तो मैक्रो पॉलिसीज को ड्राइविंग फैक्टर कौन सा है, बेसिकली कि यहाँ पे ये लास्ट लाइन में इसका आंसर है, मॉडल्स आर इंप्रूविंग सो आर क्वांटिटेटिव कैपेबिलिटीज एंड क्वालिटेटिव जजमेंट्स दैट ड्राइव मैक्रो पॉलिसी विल बिकम मोर रिफाइंड। तो इसका आंसर बी है। ठीक है, आगे। ओके, the question says dash as defined under foreign trade policy and that has been implemented by DGFT, जिसका मेन एम है to mentor new and potential exporters on the intricacies of foreign trade थ्रू काउंसलिंग, ट्रेनिंग एंड आउटरीच प्रोग्राम। तो ये क्या है, ये मिनिस्ट्री का नया इनिशिएटिव है जिसमें जो अर्ली इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स हैं उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, उनको ऑनलाइन कोर्सेज दिए जाएंगे जिसमें जो बेसिक्स है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के वो सिखाए जाएंगे, दैट इज निर्यात बंधु स्कीम। तो ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिव मेंटरिंग रिक्वायर्स ट्रस्ट एंड लेवल ऑफ ट्रस्ट रिफ्लेक्ट्स द मेंटर्स। तो ये जो सवाल है दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू ट्रायंगुलर मॉडल ऑफ मेंटर कॉम्पिटेंस एंड उसके हिसाब से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following consists of physical working conditions, work schedule, incentives and number of people with whom employee would normally interact? तो बेसिकली क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है जॉब कॉन्टेक्स्ट की, जिसमें जो एनवायरनमेंट है जॉब का उसका एनालिसिस होता है। एनवायरनमेंट से मतलब है फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है, टीम के बीच में डायनामिक्स कैसे कैसे हैं, या फिर जो वर्क है उसके स्केड्यूल क्या है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलीव्स एंड बिहेवियर्स डज नॉट कैरेक्टराइज कलेक्टिविज्म। ठीक है, कलेक्टिविज्म क्या है, एज अ होल का सोचना है, इंडिविजुअल का नहीं सोचना है। अगर आप इसमें ऑप्शंस में जाएंगे तो आप इजीली ऑड वन आउट कर देंगे, किसको, ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी क्या कहता है, इंडिविजुअल ओपिनियंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ कलेक्टिव ओपिनियंस। ऐसी बात नहीं करनी है, सब कुछ कलेक्टिव रहना है, इंडिविजुअलिटी को डीप्रायोरिटाइज करना है। इसीलिए करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। हनीवेल्स इनकॉर्पोरेशन हैज बीन मूव्ड फ्रॉम अ हायरार्किकल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर टू अ मच फ्लैटर एंड टीम बेस्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर था जिसमें चेन ऑफ कमांड वगैरह होगा, उससे अब क्या हो रहा है, मच फ्लैटर एंड टीम बेस्ड स्ट्रक्चर की तरफ जा रहा है। ऐसे डिस्क्रिप्शन को क्या हम कहेंगे, ऐसे डिस्क्रिप्शन को हम कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन, मूविंग फ्रॉम सेंट्रलाइजेशन टू डिसेंट्रलाइजेशन। इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंपनीज यूज डैश
when they lack financial resources to carry out direct marketing and when they can earn more by doing so. ये क्या है, ये इंटरमीडिएट्स की बात कर रहा है. तो इंटरमीडिएट्स पहले तो क्या होते हैं, these are the firms that assist the supply of good and services from flow of good and services from producer to the consumer. तो जब आपके पास एज अ कंपनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, आप प्रोसेस को एफिशिएंट बनाते हैं थ्रू यूजिंग इंटरमीडिएट्स या फिर कुछ इनके साथ कोलैबोरेट करते हैं, उसी को हम कहेंगे करेक्ट आंसर, और ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल पेमेंट सिस्टम इज डेवलप्ड एंड मैनेज्ड बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ये भी अगर आप थोड़ा बहुत अखबार पढ़ते हैं तो एकदम सही आंसर आप इसका लिख देंगे. एनपीसीआई का जो प्रोडक्ट है इन द टर्म्स ऑफ कार्ड पेमेंट, दैट इज रुपे. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज नॉट अ मेथड ऑफ जनरेटिंग सेल्स लीड इन पर्सनल सेलिंग. तो सेल्स लीड कैसे जनरेट नहीं होगी बेस्ड ऑन दी ऑप्शंस. तो इसका करेक्ट आंसर है रेफरल से बिल्कुल होगी, नेटवर्किंग से बिल्कुल होगी, कोल्ड कॉल से बिल्कुल होगी, बट कूपन के से सेल्स लीड नहीं होगी. कूपन एक तरीके से इंसेंटिव है जो फाइनल परचेजिंग का टाइम आएगा उसमें इंसेंटिवाइज करने के लिए. तो ऑप्शन सी इसलिए सही आंसर हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. डेक्स टेक इनटू अकाउंट अ होस्ट ऑफ इनपुट सच एज बायर्स इमेज ऑफ द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, द चैनल डिलीवरीज और the warranty quality, customer support and software attributes such as suppliers reputation, trustworthiness and esteem. तो बेसिकली क्या कह रहा है, ये बात कर रहा है कि इसमें जो बायर्स का जो इन्वॉल्वमेंट है उन सारी चीजों का भी ध्यान रख के जो प्राइसिंग डिसाइड हो रही है, तो दैट इज इकोनॉमिक वैल्यू टू कस्टमर प्राइसिंग. इसमें क्या होता है, जो प्राइसिंग डिसाइड होती है वो बेस्ड ऑन दी परसेप्शन ऑफ अ प्रोडक्ट जो बायर के माइंड में है, उसके बेसिस पे प्राइसिंग डिसाइड होगी. तो ऑप्शन सी यहां पे हमारा सही हो जाएगा, इकोनॉमिक वैल्यू टू कस्टमर प्राइसिंग. आगे बढ़ते हैं. द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट द इंडिविजुअल और सेगमेंट विल जनरेट ओवर अ लाइफ टाइम रिलेशनशिप विद अ ब्रांड और फर्म. ये काफी ही कॉमन कॉन्सेप्ट है, दैट इज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू. इसमें जो कंपनी है वो क्या करती है, वो नेट प्रॉफिट को एस्टिमेट करती है बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप ऑफ कस्टमर विद अ ब्रांड. ठीक है, तो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इज द करेक्ट आंसर. तो ऑप्शन बी को हम टिक करके आ जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन साफ्ता की बात करता है जो सार्क के अंदर है. इट कैटेगराइजेस मेंबर नेशन एज नॉन लीज डेवलप्ड कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स एंड लीज डेवलपिंग कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स. सो बेसिकली साफ्ता ने क्या किया है, जो मेंबर नेशन है उनको इन दो कैटेगरी में बांट दिया है सो दैट ट्रेड लिबरलाइजेशन है वो रैशनल हो सके. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी विच इज EDNB, यानी कि श्रीलंका, इंडिया एंड पाकिस्तान. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेवेंट इन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस. तो इनोवेशंस के लिए क्या स्टेटमेंट रिलेवेंट है उसकी बात करनी है. तो मोस्ट इनोवेशंस आर इंक्रीमेंटल, एकदम रिलेवेंट है ये. मोस्ट इनोवेशन इन्वॉल्व द कमर्शियल यूटिलाइजेशन ऑफ आइडियाज, बिल्कुल सही बात है, कमर्शियलाइजेशन तो करना ही है. इनोवेशन कैन नॉट बी एक्सप्लेन विद आइसोक्वांट, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. बेसिकली आइसोक्वांट क्या होता है कि जब कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट से सेम आउटपुट हम निकालते हैं, दैट इज आइसोक्वांट. ठीक है, तो सी यहां पे सही हो जाएगा. उसके बाद सी यहां पे गलत हो जाएगा. उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ इनोवेशन इज नॉट स्टिमुलेटेड बाय स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक राइवलरी एंड ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन, बिल्कुल गलत बात है ये. इंट्रोडक्शन ऑफ इनोवेशन इज डेफिनेटली स्टिमुलेटेड बाय राइवलरी, जैसे कि हम चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी का देख भी रहे हैं जिसमें टेक राइवल भी चल रही है और इनोवेशन लगातार आगे बढ़ रहा है. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा. द रिस्क इन इंट्रोड्यूसिंग इनोवेशन इज यूजुअली हाई, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो कंज्यूमर या कस्टमर है उसकी जो एडेप्टेबिलिटी होगी इनोवेशन को वो थोड़ी सी रेजिस्टिव होगी, इसीलिए ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा. तो ABNE इज द करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन सी. आगे बढ़ते हैं. Which of the following are considered while avoiding conflict. ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना है उसके लिए क्या क्या कंसीडर करना होगा. उसके लिए हमें कंसीडर करना होगा वो सारे मैटर्स जिन पे कॉन्फ्लिक्ट होता है. पॉइंट टू बी नोटेड, वो सारे मैटर्स जिन पे कॉन्फ्लिक्ट होता है वही हमारे सही आंसर होंगे. सो कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिल्कुल इस मैटर पे होता है, तो एकदम सही है. ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स आर नॉट बैड एंड कैन बी टेकन पॉजिटिवली, ये एक तरीके से ज्ञान की बात है, ये मैटर्स की बात नहीं कर रहा है, तो ये हमारे लिए सही नहीं होगा. कॉन्फ्लिक्ट ओवर कॉन्टेंट एंड गोल ऑफ द वर्क, बिल्कुल सही बात है, इस पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है.
कॉन्फ्लिक्ट डू नॉट सपोर्ट अ ग्रुप्स गोल एंड इंप्रूव इट्स परफॉर्मेंस। अब ये बात भी ज्ञान की बात है, इट इज नॉट रिलेटेड टू वो मैटर्स जिन पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो इसको भी मैं क्रॉस कर दूंगा। कॉन्फ्लिक्ट ओवर हाउ वर्क्स गेट डन, ये भी सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ACNE यानी कि ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजरियल एक्शन आर फॉलोड टू रिड्यूस रेजिस्टेंस टू चेंज। हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस टू चेंज जो होता है उसको हमें रिड्यूस करना है। तो कैसे होगा रिड्यूस? एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन आर स्ट्रॉन्ग टूल्स फॉर रेजिस्टेंस टू चेंज। बिल्कुल एजुकेट करिए, कम्युनिकेट करिए, उसी से रेजिस्टेंस कब होगा। अलाउ पार्टिसिपेशन टू दोज हु ओपोज अ चेंज टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, ये भी एकदम सही बात है। नेगोशिएशन में बिकम वाइटल व्हेन रेजिस्टेंस कम्स फ्रॉम अ पावरफुल सोर्स, बहुत ही अच्छी बात है। एम्प्लॉय काउंसलिंग डज नॉट सर्व द पर्पस, ये क्या बात हुई, इसको बिल्कुल क्रॉस कर दीजिए। कोएर्शन कैन बी यूज्ड टू गेट सपोर्ट इजीली, आई मीन इसको तो कोई भी सही टिक करके नहीं आएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका A, B and C विच इज ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। तो बेसिकली क्या था, जब RTGS या NEFT था, उनके संग कॉन्सेप्ट ये था कि वो बैंक के आवर्स में, जो ऑफिस आवर्स होते हैं वहीं तक पेमेंट के लिए अवेलेबल थे। पर IMPS ने क्या चेंज किया, IMPS ने 24/7 की पेमेंट की सर्विसेज सबसे पहले दी, और दिस एक्चुअली ऑल्सो प्रमोट मोबाइल बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग के बारे को भी प्रमोट किया। तो इसमें सारे ही ऑप्शन जो है वो सही है, एक्सेप्ट जो आपका ई दिया है जो कहता है टू रिस्ट्रेन अ नेशन वाइड पेमेंट सिस्टम। नेशन वाइड पेमेंट सिस्टम को भाई क्यों रिस्ट्रेन करना है, उसे तो हमें और बढ़ाना है, एनकरेज करना है, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। बाकी सारे स्टेटमेंट सही है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ द RBI। RBI के फंक्शंस जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड होते हैं, वो कभी भी फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड नहीं होते, इसीलिए सी को बिल्कुल हटा देंगे। बाकी सारे एकदम सही हैं, यानी कि A, B, D, E इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन बी में दिया भी गया है। नेक्स्ट कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग की अजम्पशंस। सबसे पहले तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता क्या है, बेसिकली जो प्रोडक्ट है उसके पूरे जीवन, उसका जो पूरा जीवन रहेगा उसकी बात करता है ये, और इसको 4 स्टेजेस में बांटा जाता है, दैट इज इंट्रो, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड फाइनली इंट्रो, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉफिट रिमेन स्टेबल एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ PLC, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है, तभी तो वो स्टेजेस बने हुए हैं। प्रोडक्ट्स हैव एन अनलिमिटेड लाइफ, भाई अनलिमिटेड लाइफ नहीं है, क्योंकि डिक्लाइन भी लास्ट में हो रहा है। बाकी जो 3 स्टेटमेंट है विच इज C, D and E, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इसीलिए D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Emotional appeal is one of the types of advertising appeal based on 3 ideas, namely rational appeal generally go unnoticed, बिल्कुल सही बात है। Consumers watch all ad, नहीं देखते कंज्यूमर। It can capture attention and foster an attachment, एकदम सही बात है। Consumer ignore most ad, ये भी सही बात है। Rational appeal generally get noticed, ये भी गलत बात है। तो A, C and D is the correct answer, which is option C। ठीक है, C A D। आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज दी है और FDI परमिटेड अंडर ऑटोमेटिक रूट दिया हुआ है, तो ये एकदम डेटाबेस सवाल है। इसमें बेसिकली FDI क्या होता है, इन्वेस्टमेंट जब इंडिया में होता है तब वो या तो ऑटोमेटिक रूट से हो सकता है या फिर गवर्नमेंट रूट से हो सकता है। ऑटोमेटिक रूट से हो सकता है तब आपको गवर्नमेंट से कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको अप्रूवल लेना पड़ता है गवर्नमेंट का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है विच इज ऑप्शन बी। तो A का 2 है, B का 3 है, C का 4 है एंड D का 1 है। तो A का हो गया 2 एंड B का हो गया 3, C का हो गया 4 एंड D का हो गया 1। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग राउंड्स फॉर मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन अंडर GATT WTO इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है, तो इसमें अगर मैं निकालना चाहूं तो सबसे पहले जिनेवा में हुई थी 1947 के अराउंड, उसके बाद NAC हमारे ऑप्शन में आ जाएगा 1949 में, फिर टोक्यो आ जाएगा 1951 के अराउंड। ठीक है, 1960s में 64 के अराउंड कैनेडी हुई थी। तो CDA तो हमारा आना ही है, दैट इज दिस, और उसके बाद E है आपका टोक्यो 1970s में हुई थी, फिर 2001 के अराउंड दोहा में हुई थी, तो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा CADB।
आगे बढ़ते हैं, अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप मेंबर्स बिहेवियर आउटकम इन अ सीक्वेंस एज पर दी सक्सेसिव ग्रुप स्टेजेस ऑफ ग्रुप बिल्डिंग प्रोसेस। तो ग्रुप बिल्डिंग प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है, फॉर्मिंग, जब ग्रुप फॉर्म होता है थोड़ी सी ईगरनेस होती है, एंशियसनेस होती है, ठीक है। उसके बाद यानी कि ईगरनेस और एंशियसनेस के लिए ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टॉर्मिंग होती है, ठीक है। स्टॉर्मिंग होती है जिसमें एक तरीके से जो डिफरेंसेस होते हैं आपस में वो कन्फ्रंट करे जाते हैं, वो एक्नॉलेज करे जाते हैं, तो CAD। स्टॉर्मिंग के बाद होती है नॉर्मिंग, ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन C, ठीक है, जिसमें जो बिलोंगिंगनेस की फीलिंग है वो धीरे धीरे जो डिफरेंसेस है वो कम होने लगे हैं, अब बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आना स्टार्ट हो गई, तो नॉर्मिंग हो गया। उसके बाद परफॉर्मिंग, ठीक है, जो कि ई में दिया है, इंटरडिपेंडेंस, पर्सनल रिलेशनशिप में जो इंटरडिपेंडेंस है वो फॉस्टर होने लगी है और अब परफॉर्मेंस चालू हो गई है। उसके बाद लास्ट में होगी आपकी एडजर्निंग, ठीक है, यानी कि जब ग्रुप वापस, अब जब बिलोंगिंगनेस के बाद ग्रुप जब टूट रहा है तो थोड़ा सा डिप्रेशन है, थोड़ा सा अपसेटनेस है, इसीलिए ADCEB इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग SBI स्पॉन्सर्ड RRB बैंक्स, हाँ, इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एग्जिस्टेंस सिंस फॉर्मेशन। ये बहुत ही कठिन सवाल है क्योंकि ये सब याद करना संभव नहीं है, फिर भी हम इसके आंसर को लिख देते हैं। 1978 में ये बना, ठीक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 1983 में बना, फिर मध्यांचल बना 2012 में, ठीक है, उसके बाद राजस्थान जो था वो बना अप्रैल 2014 में और तेलंगाना बना अक्टूबर 2014 में। कोई याद भी करना चाहे तो उसको ये भी याद करना पड़ेगा कि अप्रैल और अक्टूबर में जो है बना था। ये काफी ही कठिन सवाल की कैटेगरी में माना जाएगा और ऐसे सवालों को में केवल तुक्कों का ही सहारा लेना उचित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विच इज CED-A-N-B। उसके बाद प्लेस द फॉलोइंग सर्विस डिफरेंशिएट्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंसिंग ऑर्डर कर देते हैं। ये सर्विस डिलीवरी जो है उसकी प्रोसेस की बात कर रहा है, तो सबसे पहले ईज ऑफ ऑर्डरिंग, ई सबसे पहले आ जाएगा, पहले आदमी ऑर्डर करेगा। उसके बाद स्पीड एंड टाइमिंग ऑफ डिलीवरी, उसके बाद डिलीवरी होगी, ठीक है, CA। उसके बाद इंस्टॉलेशन, ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग, उसके बाद समझाएंगे कि इसको यूज कैसे करना है। उसके बाद मेंटेनेंस एंड रिपेयर के काम रहेंगे एंड देन फाइनली रिटर्न की बात हो जाएगी, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन विद हाई सेल्फ एस्टीम आर लेस ससेप्टेबल टू इन्फ्लुएंस, मोर कॉन्फिडेंट ऑफ अचीविंग गोल्स एंड मोर इफेक्टिव इन सोशल नेटवर्किंग। सेल्फ एस्टीम जो है वो क्या होती है, हाउ वी वैल्यू एंड परसीव आवरसेल्फ, कि हम क्या है और हाउ डू वी वैल्यू आवरसेल्फ, तो दैट इज सेल्फ एस्टीम। एकदम सही है, रीजन बताता है, सेल्फ एस्टीम मैनिफेस्ट इन सेवरल बिहेवियर्स, पर्सन विद सेल्फ एस्टीम टेंड टू रिपोर्ट फ्यूअर नेगेटिव इमोशंस देन पर्सन विद लोअर सेल्फ एस्टीम। नेगेटिव इमोशंस कम होते हैं, पर्सन कॉन्फिडेंट होता है, एकदम सही बात है, बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंज्यूमर में प्रेफर टू चूज द चैनल बेस्ड ऑन देयर ओन शॉपिंग गोल्स एज वेल एज प्राइस, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट, कन्वीनियंस। इस असर्शन में कोई समस्या नहीं है। सम कंज्यूमर्स आर अनविलिंग टू ट्रेड अप टू रिटेलर्स डूइंग हायर एंड गुड्स एंड ट्रेड डाउन टू डिस्काउंटेड रिटेलर्स फॉर प्राइवेट लेबल। एकदम सही बात है, दोनों ही असर्शन जो है रीजन अच्छे से समझा रहा है, तो ए एंड आर द करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे बढ़ते हैं, चैनल पावर इज द एबिलिटी टू ऑल्टर चैनल मेंबर्स बिहेवियर सो दैट दे टेक एक्शन दे वुड नॉट हैव टेकन अदरवाइज। तो चैनल पावर क्या होती है, एक तरीके से जो डीलर और सप्लायर के बीच में जो पावर स्ट्रगल है उसकी बात करता है और कैसे कोऑपरेशन की तरफ उसको ले जाया जा सकता है, ठीक है। तो अलग अलग चैनल पावर्स होती हैं, इनमें से सब्जेक्टिव पावर कौन होगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि रेफरेंट, लीगल और एक्सपर्ट, ठीक है। तो रेफरेंट पावर क्या होती है, एक तरीके से जो सप्लायर होता है उसकी जो अथॉरिटी है वो स्टैब्लिश है, उसकी लाइकेबिलिटी है, तो उसकी बात वैसे ही मानी जाएगी, एक इन्फ्लुएंस क्रिएट किया जाएगा, यानी परसेप्शन जो है सप्लायर के दिमाग में वो वैसा ही होगा, तो डी सही है। लीगल पावर क्या होती है, लीगल पावर होती है एक तरीके से जो डीलर होता है ही और शी परसीव द लेजिटिमेट राइट ऑफ सप्लायर टू प्रिस्क्राइब बिहेवियर फॉर सप्लायर, इसीलिए ये भी अपने आप में करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एक्सपर्ट पावर क्या कहती है, एक्सपर्ट पावर कहती है कि एक परसेप्शन होता है सप्लायर डीलर का सप्लायर का कि हाँ इसको पता होगा कि इस प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट की नॉलेज क्या है उसको भी परसीव किया जाता है, इसीलिए भी सब्जेक्टिव है, तो ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, विच इज डी, ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कॉन्सेप्ट टारगेटिंग के कॉन्सेप्ट्स की बात करी है। 4 टाइप के टारगेटिंग कॉन्सेप्ट दिए हैं, इट इज कंपैटिबिलिटी, टारगेटिंग, अट्रैक्टिवनेस एंड स्ट्रेटेजिक टारगेटिंग। इसकी डायरेक्ट इनका जो डायरेक्ट डेफिनेशन है वो यहाँ पे सीधे सीधे दिया हुआ है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विच इज ए का 2, बी का 4, सी का 1 एंड डी का
3। पैसेज पे आते हैं। पैसेज में बिल्कुल ही डायरेक्ट पैसेज है, जो सवाल पूछा गया है वो पैसेज में वो जानकारी डायरेक्टली दी गई है, इसीलिए काफी आसान पैसेज माने जाएंगे। इन द रिसेंट ईयर्स द फोकस ऑफ प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल इन इंडिया हैज बीन ऑन वैल्यू क्रिएशन। ये बात यहीं कहीं बीच में आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगली बात, द प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्टिंग टू विच प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल इज कमिटेड टू हैव रिजल्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आउटकम्स फॉर द इंडियन इकोनॉमी। यहां पे भी देखिए ये बात आपको मिल जाएगी, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल ये बात सीधे सीधे दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, उसी के हिसाब से आंसर इसका सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द पैसेज हैव मेड इंडियन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। यहां पे देखिए अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रही है, ठीक है, इन सारों के कारण अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रही है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बीन एक्सेप्टेड एज अ वे ऑफ लाइफ एंड लाइवलीहुड, तो यहां पे बीच में कहीं एंटरप्रेन्योरशिप की बात करी गई है, माइंडसेट वेयर एंटरप्रेन्योरशिप में एक्सेप्ट एज अ लाइवलीहुड, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असर्शन दिया है, द प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम है स्पार्क रेनेसा एम्पावरिंग यंग माइंड टू टेक अ बोल्ड लीप। यहां पे देखिए बिल्कुल सीधा सीधा दिया हुआ है, असर्शन इसका सही है, रीजन भी सही है, बोथ आर करेक्टली एक्सप्लेनिंग ईच अदर। Sorry, reason is correctly explaining assertion. Reason is correctly explaining assertion. Okay, so we have to calculate the price of share using the Walter model. So according to Walter model, the price is given by P is equal to D plus R by KE into E minus D divided by KE. So we can put up these values. What is D? Because earning per share is ₹4 and payout is 40%. So 40% of 4 becomes 2.4, therefore value of D becomes 2.4. So putting these values, D is 2.4, R is 0.16, K is 0.12, E is 4, D is 2.4, again K is 0.12. So you can use all these values and price will come out to be ₹40, which is my option C. Next one. So guys, first statement is correct and second statement is incorrect. So why second statement is incorrect? For that you have to understand the T distribution. So in case of T distribution, as my sample size decreases, so for example if this is sample size of 30 and now if I move to sample size of maybe 20, so how this will be? 20 will be something like this, n is equal to 20, and if I go to 10 it will be something like this. So this will be sample size if sample size is decreasing further. So guys, what we are seeing that as we are increasing the sample size from 10 to 20 to 30, it becomes more skewed. It means there will be lesser area in the tail. There will be lesser area in the tail as my sample size is increasing. So as my sample size is increasing, there will be lesser area in the tail. So therefore for a given level of significance, the critical value of T will not increase but it will decrease as n will increase, and therefore second statement is incorrect. First statement is anywhere correct, and therefore correct answer is option C. Okay, next one, this is a marketing term for immediate response or encourage an immediate sale which is used on our website. It is call to action, CTA. This is piggybacking, option C. So guys, I'm focusing more on where we have to explain something. Rest theory once you can do yourself. I'm telling you answers one by one. The price earning ratio for firms in a certain industry follows normal distribution. A firm's price earning ratio has standardized value of 1. It is included in the highest what percentage of firms. So it looks a FM question, but it's not a FM question, it's a stats question. So it says that Z value is 1. So if Z value is 1, it means that this area, which area? This area will be equal to 34.13%. So if the area is 34.1%, then this area will be what? This area will be 50 minus 34.13. It will be 15.8
50.87 percentage. So it is included in highest what firms? So value is increasing as we go this way. So the highest firms are represented by the portion which I highlighted in red, and therefore this will be in top 15.87 percentage, which is option C. It's a stats question, not FM question. Incoterms, you can see it is this topic is taught in international trades documentation. The correct answer is option C. In a certain population, 22% of people are smoker, 57% males. So this is again a stats question, and it is used with the help of contingency table. So now what NTA has done, NTA, so if the question is same, then what should be our answer? So if I write male, okay, and then I write female, okay, then I write smokers, and I write non-smokers. So the way values are given, it is 22, it is 78, total is 100%, it is 57, this is 47, this is 43, and it is given that 20% males are smokers. It means out of all males, 12% are smoker. It means this should be 12% of 57, and this comes out to be 6.84, and so remaining value will be 50.16, this will be 15.16, this will be 27.284, and therefore my correct answer should be 57 plus 15.16 divided by 100, and my answer should be 72.16, जो कि एक भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है. So guys, so ideally this should be the answer अगर ये सवाल था तो, पर एनटीए ने सवाल बनाने में ही गलती किया. तो इन लोगों ने सवाल कहीं से चिपका लिया पर सवाल को ठीक से कॉपी नहीं किया. सो इन प्लेस ऑफ दिस व्हाट एनटीए शुड हैव रिटन, ठीक है, जो यहाँ ये वर्ड है मेल्स आर स्मोकर, इसकी जगह एनटीए क्या लिखना चाहिए था? इसकी जगह एनटीए को लिखना चाहिए था मेल्स हु स्मोक. ठीक है, तो सवाल का पूरा सेंस ही बदल गया. और अगर हम ऐसा करते तो फिर ये सारी वैल्यूज क्या होती? दिस वुड हैव बीन 12, दिस वुड हैव बीन 45, दिस वुड हैव बीन 10, दिस वुड हैव बीन 33, एंड देन आंसर हमारा क्या आता? 57 प्लस 10 डिवाइड बाई 100 विच इज 67%, विच इज ऑप्शन डी. ठीक है. सो एनीवे वी आर विक्टिम्स ऑफ छोटा छोटा गलती जो करते हैं एनटीए वाले लोग. लेकिन अगर किसी का 72.6 आया था तो उसने ठीक से सवाल ही किया था. ये एनटीए ने सवाल बनाने में ही गलती किया. मैंने आपको बता भी दिया कि कैसे थोड़ा वर्ड को रिफ्रेज करके क्या एनटीए ने उसमें क्या मिस्टेक किया है. The following are more relevant to substitution effect. So guys, there are two effects. We do it in managerial economics. Substitution effect क्या होता है कि जैसे ही किसी गुड का प्राइस कम होता है, so that good, so other goods are substituted by that good, and therefore consumption of that good increases. This is known as substitution effect. Income effect क्या होता है कि जैसे किसी का प्राइस कम होता है, द रियल इनकम इंक्रीजेज एंड देयरफॉर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज. हमें क्या दिया है कि इन दोनों इफेक्ट में विच इज लार्जर इफेक्ट. सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज लार्जर देन इनकम इफेक्ट. क्यों? बिकॉज customers are more sensitive to price change than income change. This is the reason, and therefore A is the correct answer. Source of oligopoly, and which is also applicable to monopoly. You can look at these properties. It requires significant capital investment. Correct answer is B. Which of the following does not support third degree price discrimination? So guys, there are some conditions which are required for price discrimination. So in this case B make no sense, because price discrimination can happen in any industry. It is not limited to manufacturing only. It can be in any industry. Therefore B is not correct. बाकी सारी options ठीक हैं. Which of the following concept measures the amount of capital that firm will give up using the one additional unit of labor? So guys, आपको isoquant आप लोगों को याद होगा. So we plot labor on x-axis, we plot capital units on y-axis,
and for any quantity q, maybe q is equal to 200, this is known as my iso quant. For a given quantity, how much labor and how much capitals are required, moving any point on this curve will give you that. Okay? So guys, for this curve, the marginal productivity of labor divided by marginal productivity of capital gives us MRTS, marginal rate of technical substitution. कैसे एक को दूसरे तुम substitute कर सकते हो? This is known as marginal rate of technical substitution. So the way one thing can be given up for other or substituted for other, it is MRTS. Which theories of capital structure articulate that firm borrows and so on and so on and so on. So where this is what? This is static theory. यहाँ भी थोड़ा NTA को थोड़ा better कर सकते हैं. They should have written the complete better name is static trade-off theory. इसका ये नाम है पूरा, ठीक है. और ये वाला थ्योरी हमें क्या बोलता है कि as more debt is increased in the capital structure, जैसे जैसे ज़्यादा leverage which we are having, more debt is there, so you will have benefit of tax shield, ठीक है. तो value of firm will keep increasing, लेकिन एक point के बाद it will start increasing because of what? Because of cost of financial distress, and therefore this point is what? Your optimum capital structure. This is my static trade-off theory. Correct answer is A. Again इसको NTA थोड़ा अच्छा सवाल बना सकता था. Okay, types of defensive strategies, Pacman defense, easily you can Google it and understand what this is. Again NTA ने थोड़ा सा इसमें इसका ना A आंसर भी उतना ही करेक्ट है. क्यों इसका A आंसर भी उतना ही करेक्ट है? Although correct answer is given C, A is also equally correct answer. क्योंकि जो क्वेश्चन में जो वर्ड है इसकी जगह क्या होना चाहिए था? इंस्ट्रूमेंट की जगह क्या लिखना चाहिए था? और जहां से कॉपी किया तुम वहां जाके भी चेक कर लेना जिस किताब से NTA ने चिपकाया है. इंस्ट्रूमेंट की जगह लिखना चाहिए था फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट. अगर ये लिखा होता तब आंसर होता फॉरवर्ड हेज. अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी उतना ही ठीक आंसर है, पर ठीक है जो NTA ने दिया करेक्ट आंसर की इज ऑप्शन सी. डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी क्या होता है? देयर आर पॉइंट्स वेयर द वैल्यू इज डिफाइंड. सो इसके बाइनोमियल इज वन टाइप, फिर उसके बाद पॉइंजो इज आल्सो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन. सो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस हम लोग पढ़ते हैं. असाइंस अ प्रोबेबिलिटी फॉर ईच पॉसिबल वैल्यू फॉर रैंडम वेरिएबल. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. ANOVA कंप्यूटेड F वैल्यू विल बी नेगेटिव. F तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता. क्यों? क्योंकि F वैल्यू में जो न्यूमरेटर हैं एंड डिनोमिनेटर हैं दैट इज नथिंग बट सम ऑफ स्क्वायर्स. जो स्क्वायर्स का सम है वो तो अपने आप में कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता. देयरफॉर F कैन नेवर बी नेगेटिव. So this is what? This is OLI framework. OLI framework, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा. This was given by John H. Dunning and it is part of international business. Correct answer is option B. वेरिएंस निकालना सब लोगों को आना चाहिए. सो ये वाला हम लोग कर लेते हैं. सेल्स प्राइस वेरिएंस क्या होता है गाइज? सेल्स प्राइस वेरिएंस अनफेवरेबल क्यों है? दिस इज अनफेवरेबल बिकॉज द एक्चुअल प्राइस हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड प्राइस. 80 से 70 हो गया. देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस इज व्हाट? पहली बात तो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस और सेल्स एक्टिविटी वेरिएंस एक ही चीज होता है, ठीक है. सो दोनों या ऑप्शन बी और डी हम दोनों कंसिडर कर लेंगे. सो गाइज दिस इज गिवन बाय व्हाट? दिस इज गिवन बाय डिफरेंस इन एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे? स्टैंडर्ड प्राइस से. और इन दोनों का डिफरेंस दिया है 1000 इंटू 80. therefore it is 80,000. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ऑप्शन बी भी करेक्ट है. व्हाई दिस इज फेवरेबल? बिकॉज एक्चुअल क्वांटिटी इज मोर देन स्टैंडर्ड क्वांटिटी. therefore it is favorable. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. जो द फॉलोइंग आर लिमिटेशन ऑफ सीवीपी एनालिसिस. आप लोग इसको देख लीजिएगा. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेलेवेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग are relevant in deciding among different courses of action? The manager needs to consider the differential dividend cost. So correct answer is opportunity cost and marginal cost analysis, and which are option A and D. Correct answer is A.
Which of the following are reason of substitution between domestic and MNC goods? Again, it's pretty common sense. सबका होना चाहिए था. Correct answer is A. Which of the following are the constituents of trilemma of international finance? So guys, trilemma क्यों है? So होता क्या है कि it is very difficult to maintain fixed exchange rate, international monetary policy and free mobility of capital among countries. So इन तीनों ऑब्जेक्टिव को एक साथ अचीव करना डिफिकल्ट होता है बिकॉज दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर. देयरफॉर दिस नोन एज क्लासिकल ट्रायलमा ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. Which of the following factors are attributed to weakening of Indian rupees? You can go through this. Correct answer is B, C and D, which is my option D. So guys, if any question, if you are not able to understand, you can also write in the comments. हम उसको particularly थोड़ा और डिटेल में आपको समझा देंगे जो कि आपको खुद से पढ़ के भी समझ में नहीं आ रहा. When a country is accepted as a reserve currency, the potential conflict may arise between which of the following policy objectives? So domestic monetary policy, external currency policy and foreign trade policy. So these three are affected. Correct answer is option B. What is a 5-number summary? So guys, 5-number summary में for any data we'll look at 5 things. सबसे पहले lowest value, फिर highest value, उसके बाद median और मीडियन को हम Q2 भी बोलते हैं, उसके बाद फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल. सो इन 5 नंबर्स को असेस करते हैं टू लुक एट द एंटायर डेटा सेट. दिस इज नोन एज 5-number summary and therefore correct answer is option B. Which of the following are pre-experimental design? थोड़ा difficult, it's more of a research aptitude question. जनरली हम लोग कम इसको रेफर करते हैं. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी विच इज ए, डी एंड ई. वी आल्सो हैव रिटन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस ऑन आवर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. आप उसको भी रेफर कर सकते हो. द ट्रेडमार्क कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड. अगेन आंसर इज सी, ए, सी एंड ई. A, C and A, C and E. So there is another way of invented. I'm not. So कुछ बुक्स में invented नहीं लिखा हुआ, इसका दूसरा नाम लिखा होगा, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, but you can figure that out. These are different defects in managerial economics हम लोग पढ़ते हैं. Correct answer is option D. Coupon rate, yield to maturity, interest rate, risk and current bond yield. So this is from valuation of bonds. Correct answer is option A. So these are research design. What is exploratory research? What is descriptive research? What is cross-sectional research? Statistical study. Correct answer is option C. काफी आसान है, ये तो सबका होना ही चाहिए था, या पेपर 1 में भी करते हो. For this one, correct answer is option C. Arrange with regard to price leadership sustainability. And for this, so this is again managerial stats question. Correct answer is option D. Sequentially arrange impact of evolving global monetary system on economies. So correct answer is option B. Arrange the following steps of a well planned experiment in the sequential order. Correct answer is option C. So ordinary treasury bill और ad hoc treasury bill के बारे में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है and both of them are correct.